Hello students, welcome to your Good Education. I am Jitendra Tyagi. So as you know, post-gate counseling is going on and different IITs have started their application procedure. So we are covering all the IITs and we are providing you regular videos related to the form filling and all details. Okay. So today I am going to discuss about IIT Delhi, right? So the complete application procedure, rules, regulations, all these things, all details I will try to cover. All queries I will try to handle in this video. Okay, mainly how to apply, what is the application procedure, what points you have to keep in your mind, that I am going to discuss in this video. Okay, so in IIT Delhi, first of all, let us note down the important dates given by them up to now. So from 20th of March, the application procedure has been started. And last date for submission of online application and application phase 4th of April 4 PM. Okay, please note down this important date. 4 अप्रैल शाम 4 बजे तक ये रहेगा. ठीक है, वैसे तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि डेट एक्सटेंड हुआ था, बट आप उसके वेट ना करें. बिफोर दिस यू हैव टू फिल द फॉर्म. ओके, एंड रेस्ट इंटरव्यू की डेट्स क्या हैं? 14th ऑफ मई से 14th ऑफ जून तक. ठीक है, और फाइनल कब से रजिस्ट्रेशन होकर स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, वो सब डिटेल दिया हुआ है. बट एट प्रेजेंट हमें ये डेट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है. राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. इन IIT Delhi we are having PhD program. Many programs are there, but I am going to focus mainly on PhD, MTech research, okay, MTech high value assistantship, these programs, Master in Public Policy, all these things. Right, so first of all, for application to the PhD, right, what is the minimum qualification required? So to apply for PhD, there are many departments offering PhD in IIT Delhi. So if you have MTech degree or ME degree, master's degree, okay, then you should have 60% marks or 6 CGPA on a 10-point scale, and GATE is not required. Okay, nil, GATE requirement is nil. Right, so all MTech candidate who have a good CGPA, they should apply for PhD, because mainly shortlisting will be on the basis of CGPA as well as your graduation, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज. आपने कितना CGPA बनाया है, कितना परसेंटेज और किस कॉलेज से आपने किया है, ये दो फैक्टर मेन रहेंगे शॉर्ट लिस्टिंग के. ओके, नाउ सेकंड इज फॉर BTech. ओके, जो BTech वाले स्टूडेंट्स हैं, 70% अगर आप जाना चाहते हैं डायरेक्ट PhD के लिए. राइट, ये क्या है? डायरेक्ट PhD. सो नोट कर लीजिए, फॉर डायरेक्ट PhD अगर आपने BTech किया हुआ है एंड यू वांट टू डू PhD, then you should have 70% marks in your BTech or BE, 7 CGPA, okay, on 10-point scale. ये important है. 70% से अगर नीचे है तो you are not eligible then. Okay, 7 CGPA से less है, you are not eligible then. But different categories में कुछ relaxation है. I will discuss about that also. Now GATE qualified. Okay, GATE requirement is compulsory for this. Okay, so जो direct PhD में जाना चाहते हैं BTech वाले students, वो ये नोट कर रहे हैं 7 CGPA, 70% मार्क्स, गेट चाहिए. MTech वालों को गेट नहीं चाहिए टू अप्लाई फॉर PhD. लेकिन जो SC ST कैटेगरीज हैं उनको थोड़ा 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है यहाँ पे. ठीक है, सो यू कैन सी कि जो 60% का क्राइटेरिया जहाँ पे था MTech वाले स्टूडेंट्स को, वहाँ पे 55% का रिक्वायरमेंट है. ओके, और CGPA भी 5.5 फॉर SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन तीनों कैटेगरी में. राइट, एंड फॉर BTech होल्डर्स जिनके पास BTech है, जो डायरेक्ट PhD में जाना चाहते हैं, SC ST PWD कैंडिडेट, सो 65% या 6.5 CGPA इज रिक्वायर्ड. ओके, फॉर जनरल AWS OBC 70% वाज देयर, फॉर SC ST PWD 6.5 CGPA और 65% इन BTech इज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट PhD. ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, note down this very important point. Qualifying degree performance is computed by aggregating performance over all the systems or years of the qualifying degree as per the credit or weightage system approved in the institution board where the degree has been completed. Okay, so जो aggregating performance है सारे सेमेस्टर्स का ना, उसके हिसाब से ये कंप्यूट करते हैं. मतलब आपके जो मार्क्स आए होंगे अलग अलग सेमेस्टर्स के, उनका जो एग्रीगेट होगा, ठीक है ना, उनका ओवरऑल जो एवरेज निकल के आएगा उसको ये कंसीडर करते हैं. ये आप ध्यान से देख लें. ओके, नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि गेट एग्जाम में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है. अगर आपने BTech किया है, ठीक है ना,
आपको गेट में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है किस में, अगर आप CFTI से हैं, इफ यू आर फ्रॉम CFTI, करंटली आप पढ़ रहे हैं CFTI से या पास आउट हो चुके हैं, प्रोवाइडेड दैट यू हैव 80% और 8 CGPA, ठीक है ना, 80% एग्रीगेट मार्क्स इफ द मार्क्स आर द प्राइमरी मोड, अगर मार्क्स प्राइमरी मोड है तो 80% मार्क्स आपका चाहिए CFTI से, गेट की वेव ऑफ है, गेट रिक्वायरमेंट नहीं है उस टाइम पे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, ये है आपका MTech और MS रिसर्च के लिए, ठीक है ना, MSR। और इसमें MTech दो तरीके के होते हैं, एक MTech 2 इयर्स वाला और एक होता है MTech हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप 3 इयर्स वाला, ठीक है ना, और दूसरा MSR एडमिशन। तो इसमें क्या होगा, क्वालिफाइंग डिग्री BE BTech होना चाहिए इन दोनों के लिए, MTech के लिए भी और MTech हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप के लिए, या MSc होना चाहिए, एंड यू शुड हैव 60% मार्क्स और 6 CGPA और वैलिड गेट स्कोर इज रिक्वायर्ड। ओके, MTech या MTech हाई वैल्यू या MS रिसर्च, फॉर ऑल दीज 3 यू शुड हैव ए वैलिड गेट स्कोर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अगेन सेम रिलैक्सेशन टू CFTI स्टूडेंट्स, अगर आप CFTI से है, 8 CGPA है, then gate is waive off. Okay, now for MSc graduate from IIT with 8 CGPA also gate relaxation is there. Okay, जो IIT से MSc किया है जिन्होंने 8 CGPA है उनको भी गेट रिक्वायरमेंट नहीं है कंपलसरी। नाउ मास्टर ऑफ डिजाइन अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है ना, सो मास्टर ऑफ डिजाइन में क्वालिफाइंग डिग्री BE BTech ऑल दिस, बैचलर ऑफ डिजाइन BArch, ठीक है, 60% मार्क्स चाहिए और इसमें CEED स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा आपका, और SC ST के लिए सभी जगह और PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। ओके, नाउ एक यहाँ पे प्रोग्राम है MSc इन कॉग्निटिव साइंस। ओके, सो कॉग्निटिव साइंस में अगर MSc किसी को करना है, क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, बैचलर्स डिग्री, ठीक है, जिसमें BA BSc BCom BStat BMath BTech BE सारे आ जाएंगे। इसमें मिनिमम 55% और 5.5 CGPA चाहिए और इनका एडमिशन टेस्ट ये कंडक्ट करेंगे IIT दिल्ली की तरफ से। ओके, इसमें गेट नहीं होता, IIT दिल्ली खुद एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करता है और ये है MSc इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है ना, एडमिशन होगा विद रिटन टेस्ट, एक रिटन टेस्ट होगा, और MSc कॉग्निटिव साइंस के लिए, ठीक है, बैचलर्स डिग्री BE BTech वाले बच्चे जा सकते हैं 55% और इसमें COG JET स्कोर चाहिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, एक प्रोग्राम है मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जिसमें अगर कोई डाटा साइंस की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, डाटा साइंस के भी प्रोजेक्ट इसके अंदर होते हैं मेनली, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है, यहाँ पे IIT दिल्ली में भी है और बाकी इंस्टीट्यूट में भी है, ठीक है, MPP। सो इसमें क्या है, एडमिशन विद रिटन ओरल एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, और BTech डिग्री चाहिए, BSc ये सब डिग्री ग्रेजुएशन वाली चाहिए और 60% मार्क्स चाहिए। ओके, सो ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ एप्लीकेशन प्रोसीजर, अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ये लिंक दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना, और कोई भी यहाँ पे लिखो कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड बैंक चालान, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना बाई पोस्ट IIT को, नहीं करना है, ठीक है ना, ऑनलाइन ही सारा रहेगा एप्लीकेशन, ठीक। और जो फी है एप्लीकेशन फी पर एप्लीकेशन, ठीक है ना, आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना होगा, आई विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। सो पर एप्लीकेशन कितना फी है, 200 है फॉर जनरल OBC EWS एंड फॉर SC ST PWD इट इज 50 रुपीज पर एप्लीकेशन, और यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। IIT दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉर्म भरने पड़ते हैं आपको, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और सभी का इंडिविजुअल फॉर्म होता है, हर एक डिपार्टमेंट में हर स्पेशलाइजेशन का एक इंडिविजुअल फॉर्म वहां पे होता है, राइट। सो इसलिए आपको ज्यादा फॉर्म यहाँ पे भरने पड़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सेपरेट एप्लीकेशन, अगर PhD के लिए जाना है सो हर प्रोग्राम में PhD का अलग फॉर्म, जैसे PhD आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करना चाहते हैं एक फॉर्म, ठीक है, PhD आप सपोज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हैं अलग फॉर्म, PhD बायोमेडिकल में अलग फॉर्म, इस तरीके से, राइट। इसी तरीके से MS रिसर्च में जितने भी प्रोग्राम होंगे, MS रिसर्च के अंदर जितने प्रोग्राम होंगे, जैसे MS रिसर्च इन इलेक्ट्रिकल अलग फॉर्म, इस तरीके से सेपरेट फॉर्म हर एक प्रोग्राम के लिए आपको भरना होगा। ओके, और MTech में जितने भी ब्रांच हैं उन सब का भी इंडिविजुअल फॉर्म भरना होगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड फॉर ईच MTech प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली जहां पे इंटरेस्ट है और जहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी है ऐसे फॉर्म ज्यादा भरेंगे, तो वहां पे आपको, जैसे योरपीडिया में जो स्टूडेंट्स एनरोल किए हुए हैं, ठीक है, पोस्ट गेट काउंसलिंग में,
उनको तो प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है, 1 to 1 उनको बताया जाएगा उनके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे कि उनको कहाँ कहाँ लिमिटेड फॉर्म भरने चाहिए, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। स्कॉलरशिप की बात करें तो पीएचडी अगर हम ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट पीएचडी हो या रेगुलर पीएचडी हो, सो अराउंड 37,000 आपको स्टार्टिंग में मिलता है 2 इयर्स के लिए, एंड उसके बाद ये 42,000 हो जाता है, और इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकता है, राइट। नाउ एमटेक के लिए अगर आप गेट के बेसिस पे जाते हैं एमटेक में, सो 12,400 रुपीज पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है वहां पे, ठीक है। एमएस रिसर्च में भी आपको मिलता है 12,400 प्लस कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट से भी पैसा मिल जाता है। अगर जो आपके गाइड है वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनको आपकी नीड है, एक्स्ट्रा आप आवास देना चाहते हैं उनको, तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी वो दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है गाइड के ऊपर और उनके प्रोजेक्ट के ऊपर, ओके। देन देयर इज एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंशिप प्रोग्राम इन आईआईटी दिल्ली। ये 3 साल का होता है एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंशिप। इसमें आपको गाइड के जो मेनली ये भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही होता है, ठीक है, ड्यूटी करनी पड़ती है कुछ एक्स्ट्रा आवर्स में, और इसमें 22,000 पर मंथ आपको मिलता है, ओके। सो ये तीनों ही चारों प्रोग्राम काफी अच्छे हैं यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में। नाउ अब हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर, ओके। तो आईआईटी दिल्ली में हम लिखेंगे पीजी एडमिशंस, तो ये एक पेज खुलेगा, आप ये लिंक भी चेक कर सकते हैं ecampus.iitd.ac.in pgadm.login, ओके। सो इसमें आप फर्स्ट टाइम सपोज आपने विजिट किया है, यू वांट टू अप्लाई, राइट, सो यू विल क्लिक ऑन न्यू यूजर रजिस्टर हेयर, यहां पे क्लिक करेंगे न्यू यूजर रजिस्टर हेयर पे, ओके, इस पेज में। सो जब आप अब यहां पे लिखा हुआ है कि कहां पे ये बढ़िया ब्राउजर काम करेगा, एक और है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग पीजी एडमिशंस पे, यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं, ब्राउजर भी रीड करना है कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, जब आपने न्यू यूजर पे क्लिक किया, ठीक है, तब आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा, इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, यहां पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ DDMMYY के फॉर्मेट में, टाइटल मतलब मिस्टर मिस ये सब टाइटल यूज करते हैं, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, ठीक है। देन यूजर नेम आप बना सकते हैं अपना यहाँ पे, और एंटर पासवर्ड, एक पासवर्ड आप जनरेट करेंगे, उसको सेव करके रखेंगे कहीं पे, एक डायरी बना लो, उस डायरी के अंदर लिख लेना कि आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भर रहा हूँ, ये पासवर्ड वहां पे बनाया है, राइट, और उसको री एंटर करके कैप्चा डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। सो जब हम लॉगिन करेंगे इसके बाद, ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद एक ऐसा पेज खुलेगा, ठीक, इसमें यहां पे अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे अब, ओके। किस पे क्लिक करेंगे, वी विल क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, ठीक है। सो जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपने सपोज बीच में कट कर दिया, आप अप्लाई कर रहे थे बीच में गायब कर दिया ना, फिर से जब लॉगिन करेंगे ना तो ऐसा प्रोग्राम आएगा कि यू हैव अप्लाइड इन प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया वो सब लिस्ट यहाँ पे आती रहेगी। इसका ये मतलब है कि आपको रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है, न्यू यूजर रजिस्टर एक ही बार करना है, और इसी में लॉगिन करके आप ऐड करते जाएंगे, जो जो प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उन सबको इसी लॉगिन के थ्रू आप ऐड करते जाएंगे। अलग अलग ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही ईमेल आईडी से एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। सो नाउ पर्सनल डिटेल्स, अब देखो मैंने वो पेज यहां पे दिखाया नहीं है शायद, इसमें पर्सनल डिटेल्स आएंगी इस पेज पे, जब आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया ना, अप्लाई नाउ पे, तो पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर नेम, ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपसे मांगेंगे, तो वो पर्सनल डिटेल आप इजीली फिल कर सकते हैं, ओके। नाउ प्रोग्राम सिलेक्शन, अब आता है प्रोग्राम सिलेक्शन जो इंपॉर्टेंट है। सो ये पेज में सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड फॉर ईच एमटेक प्रोग्राम, जितने भी एमटेक प्रोग्राम है सबके लिए अलग अलग, पीएचडी के लिए, एमएसआर के लिए, सबके लिए अलग अलग भरा जाएगा, ठीक है। तो आप चूज करेंगे प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रोग्राम जब आप चूज करेंगे तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने यहाँ पे वो स्लिप लिया है क्या, ये देखिए, जैसे ही हमने प्रोग्राम पे चूज किया तो ये लिस्ट हमारे सामने आ रही है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक, एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंशिप 3 इयर्स, एमए, एमपीपी, एमएस, ठीक है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमडेस और एमएस रिसर्च। इसमें जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए मेनली जो प्रोग्राम है ज्यादा यूजफुल, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, और इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक, एमटेक हाई वैल्यू, ठीक है, और ये वाला एमएस रिसर्च, ये मेनली है एमएस रिसर्च और एमटेक। जो मास्टर ऑफ साइंस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। सो एमएस रिसर्च को ध्यान से देखना है। अब एक बार में किसी एक में आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम आपको लेना है उसमें आप क्लिक करेंगे। तो सपोज आपने पीएचडी में अप्लाई करना है, यू विल क्लिक ऑन पीएचडी, ठीक है। अगर आपको इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक में करना है, यू विल क्लिक ऑन इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक, उसके अंदर फिर ब्रांच आएंगी अलग अलग,
ठीक है। अगर आपको हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप पे करना है एमटेक तो वो क्लिक करेंगे यहाँ पे, नीचे फिर डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट आएगा, एक ही चॉइस आएगी, ये भी ध्यान रखना, क्लियर। तो ये हमारा मेन प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है। उसके आगे फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन लिया कि मैंने चूज कर लिया मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मान लिया एमटेक, यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटस में फुल टाइम करना है मेनली। अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं तो स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, पार्ट टाइम कोई करना चाहता है तो पार्ट टाइम, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द व्यूअर्स हैं वो फुल टाइम वाले बच्चे होंगे जिन्होंने बीटेक किया होगा अभी, जो एमटेक करना चाहते हैं तो फुल टाइम पे करना है, राइट। एंड उसके बाद डिपार्टमेंट हमने चूज किया यारडी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये ध्यान से पढ़ना, वहां पे नाम ना बड़े बड़े हैं, जैसे कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो सीधा एआई ढूंढेंगे और वो कहेंगे एआई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे उन्होंने ए से देखना शुरू कर दिया, यार कहेंगे एआई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो स्कूल का नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यारडी से स्टार्ट होता है एआई वाला डिपार्टमेंट, यारडी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद जब आप ये क्लिक कर देंगे, नीचे डिसिप्लिन में केवल एक ही ऑप्शन आएगा आपको, मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, ठीक है, माइंड्स करके, ठीक है ना, वो आप क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जाएंगे, ओके। अगर आपने कोई दूसरे, अब ये प्रोग्राम जैसे आपने कर लिया, इसमें आगे गए आप, आगे फिर आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिशन वाला पार्ट है वो आ जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट आप कर देंगे, आपका फाइनल एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ, उस प्रिंट आउट को ले लो, प्रिंट आउट सेव कर लो, तो कहीं पे नोट कर लो एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड, ठीक है ना। उसके बाद वापस लॉगिन करेंगे फिर से इसी में, और वापस लॉगिन करने पे फिर से एडिशनल मतलब अप्लाई नाउ करेंगे, फिर नया डिपार्टमेंट आप चूज करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम नया चूज करेंगे, जो भी है एमटेक है तो एमटेक, ठीक है ना। और एमटेक में ब्रांच चेंज करिए, आपने मान लिया इलेक्ट्रिकल में किया तो इलेक्ट्रिकल, और फिर नीचे स्पेशलाइजेशन। अब जैसे इलेक्ट्रिकल के बच्चों को ना बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, वहां पे कम्युनिकेशन है, ठीक है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, सो सबका अलग अलग फॉर्म जाएगा। अगर आप कम्युनिकेशन में करना चाहते हो तो एक फॉर्म कम्युनिकेशन का होगा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आएगा। अगर आप इंटीग्रेटेड सर्किट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आएगा, तो उसका एक फॉर्म होगा अलग, ऐसे सेपरेट फॉर्म होंगे हर एक स्पेशलाइजेशन के, ओके। और जो एमएस रिसर्च है, जैसे एमएस रिसर्च इलेक्ट्रिकल की बात करूं मैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के नाम से आएगा, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो एमएसआर में अलग अलग स्पेशलाइजेशन नहीं है, ज्यादातर एक ही डिपार्टमेंट है, उसी के नाम से आपको फॉर्म फिल करना है, क्लियर। तो जैसे एमटेक में ज्यादा फॉर्म हो जाएंगे, मान लिया एमटेक कम्युनिकेशन, एमटेक ये वाला आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऐसे अलग अलग फॉर्म हो गए आपके, लेकिन एमएस रिसर्च में एक ही फॉर्म जाएगा इलेक्ट्रिकल के नाम से, ओके। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। नाउ आई होप all the queries I have handled and you have understood the entire process और you can apply, okay। आगे का प्रोसीजर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आप कर सकते हो आगे, एक बार प्रोग्राम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आगे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो और फी का पेमेंट कर दो और एप्लीकेशन को सेव कर लो, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे आईआईटी को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। आई होप आप इजीली फॉर्म भर सकते हो आईआईटी दिल्ली का, ओके। ऑल द बेस्ट।